It's my joy to share the word with you this morning. आज सुबह मुझे बहुत आनंद है कि ये वचन मैं आपके साथ बांट रहा हूँ We'll continue our sermon series, Foundations. और इस सुबह हम हमारी जो श्रृंखला है बुनियाद की जो विषय है उसके ऊपर हम चालू And रखेंगे we will look at faith. और खास करके आज विश्वास के ऊपर हम बात करने वाले हैं। Okay, let's pray. Lord Jesus, thank you for this day. Thank you that you've brought us here together, Lord. And you've tied us to a purpose. You've called us, Lord, to a purpose, and you've called us your people, Lord. And I pray this morning as we hear your word, Lord, that you'll keep our eyes open to see, our ears open to hear, our minds open to understand, and our hearts open to receive what you have for us this morning. I mean, this in Jesus' most precious and holy name. Amen. Amen. So, what is faith? तो विश्वास क्या है? Okay, Hebrews 11 verse 1 says, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen, for by it the men of old gained approval. तो ये जो इब्रानियों 11:1 में ऐसा लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Okay. आगे नेक्स्ट। No, just one. Yeah, that's fine. Okay, the words trust and faith are used interchangeably and sometimes even alongside each other in the Bible. So भरोसा और विश्वास ये दोनों जो शब्द है वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कभी-कभी वहाँ वचन में हम देखते हैं इस तरह से। Okay, the Bible often uses the word faith, trust, belief interchangeably and it points us to one reality and that is faith in God. और ये जहाँ अगर आप पढ़ते हैं वचन में कि विश्वास या भरोसा या और इस तरह से परमेश्वर पे विश्वास ये जो बातें अलग अलग जगह पे एक ही बात बताते हैं कि परमेश्वर पे हमें विश्वास रखना है। Okay, so biblically faith is trusting and believing in God. तो बाइबल के अनुसार जो भरोसा है वो है परमेश्वर पे विश्वास रखना। Yeah, it is believing in His words and promises. उसके जो वादे हैं और उसका जो वचन है उसके ऊपर हम भरोसा रखें। Okay, it is believing even though we don't see Him and possibly not see the outworkings of His promises currently right now in our life. और वो ऐसा है कि विश्वास है कि हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, हालांकि हम उसे देखते नहीं हैं और उसके जो वादे हैं वो भी पूरे होते हुए अभी नहीं देखते हैं। Okay, the word faith appears 458 times in the Bible. विश्वास ये जो शब्द है वो 450 बार उसका इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। Okay, you know which are the only words that are used more than faith in the Bible? और कौन से शब्द आप जानते हैं जिसका उपयोग किया गया है वचन में इससे ज्यादा? There are only 3 other words. और 3 ही ऐसे शब्द है जिसका इस्तेमाल विश्वास से भी ज्यादा किया गया है। You know what those words are? क्या जानते हैं कौन से शब्द हैं वो? Huh? No. Huh? No. Faith is mentioned more than love. नहीं। There are only 3 words. I'm surprised you all didn't even guess it. But the 3 words are God, Jesus and Lord. वो 3 शब्द है परमेश्वर, यीशु और प्रभु। God, Jesus and Lord are mentioned more than faith in the Bible. और परमेश्वर, यीशु और प्रभु ये 3 शब्द विश्वास से भी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। Okay, so if faith is mentioned so many times in the Bible, that means it is very central to what we believe. अगर विश्वास इस शब्द का इतना उपयोग किया गया है वचन में, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए बहुत ही महत्व का और केंद्र ऐसा शब्द है। Okay, it is central to God's promises and purposes in our life. और ये परमेश्वर के जो वादे हैं उसमें वो मुख्य है। Okay, Ephesians 2 verse 8 to 9 says. इफिसियों 2 8 और 9 ये कहता है आपके सामने है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Okay, we are saved by grace. हमारा कैसे उद्धार हुआ है? अनुग्रह के द्वारा। Okay, we are saved by grace through faith. और अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा। Okay, our first steps into a relationship with God are taken through faith. और हमारे जो पहले कदम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के रिश्ते में आते हैं वो है विश्वास के द्वारा। God extends His grace and we take a step of faith. परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे पास लेते हैं
और हम विश्वास के कदम उठाते हैं। Okay, Romans 10 verse 9 says, और रोमियो 10:9 वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। okay, it says if we confess with our mouths and believe, if we have faith in our hearts that God raised Jesus from the dead, we will be saved. और जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे और मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे जिलाया है तो निश्चय ही तुम्हारा उद्धार होएगा। Faith is central to God's purposes over our lives. और परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए है उसके लिए विश्वास बहुत मुख्य है, उसकी उपयोग है। Hebrews 11 verse 6 says, without faith it is impossible to please God. इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Everything we do needs to be done in faith. जो भी हम करते हैं वो विश्वास के द्वारा ही करना है। So faith is not only for salvation, it is for life ongoing. और विश्वास है सिर्फ अपने उद्धार के लिए नहीं, लेकिन हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी है। Galatians 3:11 says the righteous shall live by faith. गलाती 3:11 में लिखा है कि जो धार्मी है कोई धार्मी नहीं ठहराता क्योंकि धार्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Okay. 2 Corinthians 5:7 says that we walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7 ऐसा कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Okay, we might not see God at work. Things around us must be crumbling to pieces, but still we choose to walk on. और हम परमेश्वर के जो कार्य कर रहे हैं वो देख नहीं पाते कभी, या हमारे आजू बाजू की जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से टूट चुकी होगी, लेकिन फिर भी हम विश्वास से चलेंगे। We choose to press on in faith, knowing that God will come through for us. तो हम इस तरह से चुनाव करते हैं कि हम विश्वास से चलें ताकि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करें। Okay, faith is an assurance, it's a conviction within our hearts that the things we do not see are going to be. और एक ये जो विश्वास जो है वो हमारे अंदर का एक दृढ़ निश्चय है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है वो जरूर होने वाला है। It is a very important and key aspect of faith is that we only partly see and we do not fully see, because if we see then it is not faith. अगर ये बहुत महत्व का है कि विश्वास का मतलब ये होता है कि जब हमको थोड़ा सा भी दिखता है, थोड़ा भी दिखता है, तब भी हम विश्वास करते हैं, नहीं तो फिर विश्वास का कोई मतलब ही नहीं। Okay, so faith is about things unseen. तो विश्वास जो है वो उन चीजों में है जो हमें दिखाई नहीं देती है। Okay, I am sharing this message from a place of extreme vulnerability. तो मैं आज जो वचन मैं बांट रहा हूँ वो अपने खुद के अनुभव से ही बांट रहा हूँ। As I was preparing, I was very convicted because over the past few months, I found it very difficult to find faith. I've been living in fear. I've been living in doubt. I've been living in a lot of self-pity. तो ये जब मैं वचन तैयारी कर रहा था तो परमेश्वर मेरे दिल से छुआ, मुझसे बात किया कि मैं खुद ही विश्वास से नहीं जी रहा था, लेकिन खास करके उसमें डर था मेरे जीने में। Okay, and I'm just feeling challenged to live by faith and not by sight. और ये मुझे खास चुनौती दे रहा है कि कहाँ मुझे विश्वास से जीना है। Okay, so अभी देख के ही नहीं So सिर्फ। this afternoon, I'm not only telling this to you, I'm telling this to myself, and I'm telling this to myself the second time. और ये आज मैं जो आपसे कह रहा हूँ सिर्फ आपसे नहीं कह रहा हूँ, खुद को भी कह रहा हूँ, और एक खुद को मैं दूसरी बार कह रहा हूँ। Okay, so guys, faith is not a one-time decision; it's a daily journey. और ये विश्वास जो है वो एक समय का निर्णय नहीं, Okay, लेकिन है रोज की हमारी यात्रा है ये। Okay, we need to grow in it. It needs to deepen. It needs to mature as we walk with God. और ये विश्वास जो है हमारे अंदर बढ़ना चाहिए, उसमें हम परिपक्व होना चाहिए, जैसे हम परमेश्वर के साथ रोज चलते हैं। Okay. Now, why do I say we need to grow in faith? और मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें विश्वास में बढ़ना है? Because faith is not something that we are innately born with. ये इसलिए है कि हम जैसे हमारा जन्म होता है उसी समय से ही हमारे अंदर ये विश्वास पैदा नहीं होता है। Okay, because Ephesians 2 verse 8 and 9 says that God gives us faith. God not only gives us grace, He not only extends grace, but He also gives us faith to believe. और इफिसियों जैसे हम देखते हैं इफिसियों 2:8 और 9 में ऐसा है कि परमेश्वर हमें सिर्फ अनुग्रह ही नहीं देते हैं, उसके साथ साथ वो विश्वास भी देते हैं। Okay, and Romans 10 verse 17 says,
faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. It means faith comes from hearing. It is not already there. Once we hear, faith comes. और रोमियो 10:17 में जैसे लिखा है कि हाँ, विश्वास सुनने से, ध्यान से सुनिएगा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब है पहले विश्वास नहीं है, लेकिन जब हम मसीह का वचन पर सुनते हैं तब विश्वास उत्पन्न होता है। Okay, so we hear the word and then faith is imparted to us. अब जब हम वचन सुनते हैं तब हमारे अंदर विश्वास डाला जाता है, And through this same faith, we confess with our mouths that Jesus is Lord. और इसी विश्वास के द्वारा हम अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, And we are saved. Romans 10:10. और उसी के द्वारा, इस कहने के द्वारा ही फिर हमारा उद्धार होता है। Okay, this is the beginning of faith, but we need to develop it, we need to grow it, and we need to do this daily. लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है विश्वास में, लेकिन उसको हमें आगे बढ़ाना है, रोज उसके ऊपर कार्य करना है। The more we hear the gospel, the more we share the gospel, the more we read the word of God, the more we pray, the more testimonies we hear of our brothers and sisters, this faith increases. जितना हम वचन को पढ़ते हैं, जितना हम सुसमाचार बांटते हैं, जितना हम ये जो गवाहियां हैं उसको सुनते हैं, उतना ही हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता जाता That है। is why it's very important for us to fellowship like this week after week, to fellowship in our life groups, because we hear each other's stories, we hear what God is doing, and when we see what God is doing in our brothers and sisters' life, whom we can see, whose struggles that we know, our faith increases, saying that God can do this and way much more for me. आमेन। तो इसी तरह से ये बहुत महत्व का है कि हम अपने एक दूसरे के साथ संगति में रहे। एलजी में हम रहते हैं, जैसे कि संगति में रहते हैं, तो दूसरों की जो कहानियां सुनते हैं, दूसरों की गवाहियां सुनते हैं, और उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि परमेश्वर जैसे उनके जीवन में कार्य करता है वैसे वो मेरे भी जीवन में कार्य करेगा, और विश्वास तैयार हो जाता है। Okay, Romans 1:17 says, the righteous will live by faith. और रोमियो 1:17 कहता है कि धर्मी जो है वो विश्वास से जिएगा। We need to continue in faith daily. और इसी तरह से विश्वास में रोज चलना है। Okay, we also need to ask God to increase our faith. और इसीलिए परमेश्वर से मांगना है कि हमारा विश्वास और बढ़े। In Luke 17:5, the apostles go to Jesus and they say, Lord, increase our faith. और लूका 17:5 में जो शिष्य है वो यीशु के पास जाके कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। God will never say no to this prayer. और इस प्रार्थना को कभी परमेश्वर कभी ना नहीं He'll कहेंगे, never say, no, you've got 5 kilos of faith, that is enough. और परमेश्वर ये नहीं करे अरे आपके पास तो 5 किलो का विश्वास है, आपको कोई जरूरत नहीं है। Okay, I was talking to someone from amongst us this week, and I was explaining to them that when we ask God to give us something, a value or a fruit of the Spirit, He doesn't just give it to us like this. और ये एक व्यक्ति से बात कर रहे थे हमारे अंदर, यहाँ के कलीसिया के, तो उनको कह रहे थे कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वह प्रभु हमें आत्मा का फल दे, तो ऐसे परमेश्वर ऐसे वो फल नहीं देते हैं। Okay, it is not like He is there from top, He sees where you are, and He pours out a handi of love and grace and gentleness over you so that you get filled with it. It doesn't happen that way. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वहाँ पे बैठे हैं पूरी एक हंडी लेके के हाँ इसको संयम की जरूरत है डालो, इसको प्यार की जरूरत है डालो, इसको मुलायमता की जरूरत है डालो, इस तरह से नहीं करते हैं परमेश्वर। Rather what God does. लेकिन You know what God does? लेकिन परमेश्वर कैसे करते हैं देखिए जरा। Okay, when you tell God, teach me to love more, I want to love more. तो अगर आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे और प्यार करना सीखना है, और प्यार करना सीखना है, God will bring a person in your life who's very difficult to love, and through that He will teach you to love more. और ऐसा होगा कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति लेके आएंगे कि उससे प्यार करना बहुत नामुमकिन होगा। Okay? When you ask God for patience, He will bring people like me in your life whom you have to be very patient with. अगर आप मांगो कि परमेश्वर मुझे संयम दो, तो इसके तरह का एक व्यक्ति आएगा आपके जीवन में कि जिसको साथ में आप संयम नहीं रह सकते। पर तू खुद भी बोल सकता था ना, मतलब बोल सकता था ऐसे। रोजिटा को पूछेगा तो क्या बोलेगी? इधर है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? रोजिटा बहुत अच्छी है ना?
क्योंकि इसके साथ रहती है. हो गया. Okay. चलो, एक मिनट, When we ask for faith, जब हम विश्वास मांगते हैं okay, He'll give us impossible looking situations so that we have no other option but to believe and trust in Him in faith. तो परमेश्वर आपको ऐसे नामुमकिन परिस्थिति के पास लेके आएंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही उसके आगे जाना चाहिए. When the disciples said, Lord, help us believe, Lord, give us more faith, what does He tell them? He tells them, if you have faith as small as a sesame, as a mustard seed, you can move mountains. सो जब शिष्यों ने पूछा यीशु से कि हमें हमारा विश्वास बढ़ाओ, तो यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अगर राई के दाने जैसा विश्वास हो तो आप इस पर्वत को कहे तो वो हिल जाएगा वहां से. Okay, so if you've been asking God for faith, don't be surprised if He puts an impossible situation in front of you to which the only answer is faith. अगर आप विश्वास को मांगते होंगे कि प्रभु मुझे विश्वास दो, तो आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जो पूरी तरह से नामुमकिन हो और जिसके लिए आपको सिर्फ विश्वास की जरूरत होगी. Okay, Hebrews 11 is a chapter that talks about faith and the heroes of faith. और इब्रानी 11 ये जो अध्याय है वो जो बात करता है विश्वास के बारे में और विश्वास के जो हीरो है उनके बारे में. Okay, this chapter mentions a lot of heroes of faith. और Heroes of faith. नायक जो एकदम चैंपियन लोग हैं, विश्वास के नायक है, उसके बारे में बात करते हैं. Okay, but it mentions one character more than the others. और एक व्यक्ति का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है इस अध्याय में, वो है अब्राहम. Okay, and I want us to go through an overview of Abraham's life and see the levels of faith that we see in his life. और जैसे हम देखना चाहेंगे कि अब्राहम के जीवन में किस तरह से वो अलग अलग विश्वास के अलग अलग स्तर से गुजरा. Okay, so we first hear about Abraham in Genesis 11. और उत्पत्ति 11 में हम उसके बारे में सुनते हैं. His name is just mentioned in a genealogy. और वहाँ के जो वंशावली है उसमें उसका नाम आता है अब्राहम का. And then Genesis 12, it just begins with God speaking to Abraham. और उत्पत्ति 12 शुरुआत होता है जहाँ वहाँ प्रभु अब्राहम से बात करने लगते हैं. Okay, and what is the first thing? The first thing that God tells Abraham is go. और पहली बात जो परमेश्वर उसे कहते हैं कि जाओ. Not hi, hello, I am God. How are you doing? Is everything fine? No. The first thing He tells Abraham is go. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आके कहते हैं हेलो कैसे हो, ठीक है ना सब कुछ. नहीं, परमेश्वर कहते हैं जाओ. Yeah, leave your father's household, leave the people and go to the land I'm asking you to go. तो परमेश्वर कहते हैं उसे कि जो पिता का घर है उसको छोड़ो, जगह है उसको छोड़ो और जहां मैं भेज रहा हूं तुम जाओ वहां पे. And Abraham went. और अब्राहम वहां से निकल गया. Okay, he left everything and he went. उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो चला गया. No questions asked. कुछ प्रश्न नहीं पूछा. He left a prosperous, well-known city. और एक समृद्ध जैसा शहर है उसको उसने छोड़ दिया. Okay, imagine he was probably living in a place like Bandra on Carter Road. He had like a huge mansion. He had lots of money, and God tells him, leave everything and go. और ऐसा मानो कि वो एक बांद्रा जैसे वहाँ पे जैसे समृद्ध जगह पे, और नहीं तो ठाणे जैसे जगह पे रहता है जहाँ पे बहुत समृद्धि है और बड़े बड़े घर है, अच्छे अच्छे घरों में रहता है, लेकिन वो सब छोड़ के फिर उसको जाना पड़ रहा है. थाना. आगे देखो. I forgot what I had to say. Okay, sorry. Rewind. He didn't know where he was going, but he had faith in God. उसको नहीं मालूम था कहाँ जाना है, लेकिन उसका This is विश्वास the परमेश्वर first पे level था. of faith, simple obedience. वो पहला स्तर है, वो है आज्ञा मानना. God also gave him a promise. He told him, you'll become a great nation. You'll be blessed, and through you, all the people of the world will be blessed. और उसने परमेश्वर ने ऐसा भी कहा, उसको एक भविष्यवाणी दी कि तुम्हारे द्वारा अनेक राष्ट्र जो है वो आशीषित पाने वाले हैं. Yeah, he just took God at his word. लेकिन उसने अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर का शब्द को स्वीकार किया. God didn't give him a plan. उसको परमेश्वर ने उसको योजना नहीं दी. He didn't give him a 12-step thing saying that first you will go here, then here this is going to happen, and then that will happen. After that happens, I want you to go. No, God just told him, go.
तो परमेश्वर ने उसे ऐसे 12 कदम नहीं बताया कि भाई यहाँ से आपको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, वहां से वहां जाओगे, नहीं, कुछ नहीं। Okay. परमेश्वर ने सिर्फ कहा जाओ। Now this was his pattern. God spoke, Abraham did. और यही नमूना हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं और अब्राहम जो है वो करते हैं। He had absolute trust in God. और पूरा भरोसा था अब्राहम का I परमेश्वर want के to ask ऊपर। you, brothers and sisters, do you have absolute trust in God? इसी तरह का पूर्ण ऐसा भरोसा, विश्वास आपका परमेश्वर पे है? How many of us can simply obey what God is telling us to do? हम में से कितने लोग पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे? Okay, he may not be asking us to move cities or countries or state. शायद वो ये नहीं कहे कि आप दूसरे शहर में चले जाओ, Okay, but maybe he's asking you for more commitment towards him. और लेकिन शायद वो आपसे और ज्यादा वचनबद्धता मांगते हैं। Maybe he's asking you for, I don't know, maybe he's asking you to give more. और शायद वो आपको कह रहे हैं कि आप और ज्यादा देना चाहिए। Okay, maybe there is a relationship or there are people that you need to fix things with. और शायद ऐसा है कि आपके जो रिश्ते हैं उसको आपको सुधारने की जरूरत होगी। Maybe you need to sacrifice your comfort आप and help someone else. आपकी जो आराम की जो चीजें हैं उसको आपको बलिदान करना होगा शायद। What is it that God is asking you to simply obey him with? क्या परमेश्वर आपसे मांग रहे हैं ताकि आप उसकी आज्ञा का पालन करो? Abraham had to leave everything behind. और अब्राहम को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। A life of obedience means you have to leave some things behind because God is asking us to do that. आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन करने का जो जीवन है, इसका मतलब है आप सब कुछ छोड़ के जो परमेश्वर कहता है वो करें। Okay, the second level of faith, अभी यह दूसरा स्तर अभी देखिए। trusting God over circumstance. परिस्थिति के ऊपर भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे। God told Abraham, you are going to become a big nation. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम एक बड़ा राष्ट्र बनोगे। But the Bible says in Genesis 11 that Abraham's wife Sarah was barren. लेकिन ऐसा है कि उत्पत्ति के 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सारा जो अब्राहम की पत्नी थी वो बांझ थी। His wife is barren उसकी पत्नी बांझ है। and God is telling him, you will become a great nation. लेकिन परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि तुम एक बड़े राष्ट्र बनोगे। DNA splitting wasn't invented then. उस समय वो जो आजकल जैसे डीएनए को तोड़ के दूसरा बनाते हैं वैसे नहीं है। I should have said this in the English. I said it in the Hindi. Sorry. But yeah. When God speaks to Abraham in Genesis 15, Abraham was probably a bit depressed. और शायद जब परमेश्वर ने ये बात कही होगी अब्राहम से तो शायद वो निराश हुआ होगा। Okay, he was low because some promises of God had come through in his life. और निराश इसलिए कि कुछ जो वादे हैं परमेश्वर के वो जरूर पूरे हुए हैं। But the one thing that he desired, a son, that had not yet happened. लेकिन एक की अपेक्षा जो करते आ रहा है वो एक बच्चे की, वो अभी तक नहीं हुआ है। Now God knew this. That is why he starts with saying, telling Abraham, I am your great reward. और ये परमेश्वर जानते हैं, इसीलिए वो शुरू में परमेश्वर उसे कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार हूं। It is a great thing to hear. ये बहुत अच्छे सुनने के लिए बहुत अच्छा It's लगता a है great thing to read और पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। when it is in someone else's story. और लेकिन अच्छा है जब वो दूसरी की कहानी हो, मेरी But नहीं। when you desire something, क्योंकि आपको कुछ चीजों की बहुत बड़ी अपेक्षा है when God has promised you something, और परमेश्वर ने वो वादा भी किया है and you see everything around you is not conducive to that promise, और आप देखते हैं कि आजू बाजू में जो सब है चल रहा है वो वादे की तरह नहीं चल रहा and है, that God comes and tells you, listen, don't worry, I am your great reward. और फिर उसके ऊपर परमेश्वर आपको कहता है कि सब छोड़ दो, मैं तुम्हारा उपहार हूं। Not the best thing to hear sometimes. और ये तो सबसे अच्छी चीज है नहीं सुनने के लिए। Huh? Abraham is sad, he's hurting. अब्राहम जो है वो दुखी है, उसको दर्द हो रहा है। But the beauty of Abraham is he doesn't hide his anguish and pain. लेकिन एक सुंदर बात अब्राहम में ये है कि वो अपना जो दर्द हो छिपाता नहीं, He pours out his pain and anger, fear to God. और अपनी जो डर है, अपना जो दर्द है वो परमेश्वर के सामने पूरी तरह से प्रकट He करता says, है। God, you have rewarded me greatly, it's true. But what is the point? All of this is going to go to my servant because I don't have a child. और वो कहता है कि परमेश्वर आपने इतने आशीर्वाद दिए तो बराबर है,
लेकिन ये सारी बातें जो मुझे आपने दी है वो तो एक मेरे सेवक के पास जाएगा, क्योंकि मेरा तो कोई बच्चा है नहीं। And God being God says, listen, Abraham, don't worry. It is going to happen. You will have a child. You will become a great nation. लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, और वो कहते हैं कि आप चिंता ना करो अब्राहम, तुम्हें बच्चा जरूर होगा और तुम्हारे द्वारा बड़ा राष्ट्र तैयार होगा। He was down and out. अब्राहम तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। He was old. अब्राहम तो पूरा ये बुढ़ा है। His wife was barren. उसकी पत्नी बांझ है। But verse 6 says, Abraham believed the Lord and it was credited to him as righteousness. लेकिन छठवां वचन इब्रानी 11 में ये कहता है कि अब्राम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और इसीलिए उसको धर्मी ठहराया गया। Brothers and sisters, let me tell you one thing with absolute confidence. Life will get you and me down. और मैं पूरे विश्वास से, पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि आपको जिंदगी कभी नीचा गिराएगी। Okay, even big mighty heroes of the Bible, they've had their days. और बड़े बड़े जो नायक हैं जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, उनका भी ऐसा हाल हुआ है। But even through that, we need to continue to believe. और इसके अंदर भी हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना We have जरूरी है। to continue because circumstance is no match to the King of Kings. और ऐसा विश्वास रख के चलना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारी परिस्थिति है परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं। In chapter 17, once again God speaks to Abraham. और 17वें अध्याय में वापस परमेश्वर अब्राहम से बात करते And he हैं makes a covenant with him. और उसके साथ एक नई वाचा बांधते हैं। And he tells him the same thing again. Abraham, you will be a father of nations. और उसे यही कहते हैं कि तुम राष्ट्रों के पिता हो, You will prosper. और तुम समृद्ध हो जाओगे, You will multiply. और पूरे बहुगुणित हो जाओगे। And I want you and your household to get circumcised. और लेकिन आपको और आपका जो पूरा घर है वो सब लोग उनका कतना होना जरूरी है। Once again, Abraham is like, God, how is this practically possible? और ये प्रत्यक्ष में अब्राहम कहता है कि ये प्रत्यक्ष में कैसे कर सकता हूं ये? I am 100 now. मैं तो 100 साल का हो गया। You spoke to me 10 years back. 10 साल पहले आपने मुझसे बात किया था। And my wife is 90. और मेरी पत्नी जो 90 साल की है अभी, Doctors have already said that she is barren. और डॉक्टर ने तो पहले बोल चुका है कि ये बांझ है। Now, over and above that, you want me to get circumcised और at 100? उसके ऊपर आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा कतना होना चाहिए। And God says, don't worry, I will give you a child. और परमेश्वर कहते हैं नहीं चिंता ना करो, मैं तुम्हें बच्चा जरूर दूंगा, Just do as I tell you. सिर्फ मैं जैसे कहता हूं वैसे करो। And what does Abraham do? और फिर अब्राहम ने क्या किया? He obeys. उसने आज्ञा का पालन किया। Him and his entire family get circumcised. वो और उसका सारा जो परिवार है उन्होंने सबने कतना किया। At the age of 100. और 100 साल की उसकी उम्र है। I don't know about you guys, but if I was 100 and God comes and tells me, buddy, you need to get circumcised, I would be like, hey, this is taking it too far. आपके बारे में मालूम नहीं, लेकिन अगर ये होते 100 साल की उम्र में और परमेश्वर आके मैं होता 100 साल की उम्र में, God will ask you to do it. और अगर मुझे परमेश्वर कहता कि भाई तुमको कितना करना है, तो मैं कहता नहीं। Okay, right? It is, and you know what is? I know I'm using the word circumcision a lot. We don't use it a lot from here in this context. But the truth is, before that there was no precedent for circumcision. एक खास ये बात है कि इससे पहले परमेश्वर ने कहीं भी किसी से भी ये कतना के बारे में कहीं नहीं लिखा है, कहा नहीं है। This is the first time. ये पहले बार ऐसा बताया Now गया है। imagine Abraham. और वो अब्राहम के बारे में जरा कल्पना कीजिए। He's like, okay, this is the first time this is going to happen, and I've got to do this. And God is telling me I'm going to have a child. और I would have been very worried. वो अब्राहम के बारे में जरा कल्पना कीजिए, ये तो कभी हुआ नहीं, पहली बार, और मैं तो 100 साल का, और मुझे ये करना पड़ेगा, और उसके ऊपर परमेश्वर कह रहे हैं तुमको बच्चा होगा। ये क्या बात है? But Abraham obeyed. लेकिन अब्राहम ने आज्ञा का पालन He saw किया। his circumstances. उसने अपनी परिस्थिति को देखा, He saw God. उसने परमेश्वर को देखा, And he chose God. और उसने परमेश्वर को चुना। Brothers and sisters, what are the promises God has given you? भाइयों बहनों, क्या वादे परमेश्वर ने आपसे किए हैं? It could be about the salvation of your family.
शायद वो आपके परिवार के उद्धार के बारे में होगा, It could be about a change in your situation. आपकी परिस्थिति को बदलने वाले कुछ वादे होंगे, Maybe it is about healing something which everyone has told you कि यार ये कभी होगा नहीं. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चंगाई के बारे में जिसमें सब लोगों ने कहा कि आपके बारे में नहीं हो सकता Maybe है। God has told you something about the city of Bombay that He's going to do. और शायद इस शहर में परमेश्वर जो करने जा रहा है उसके बारे में वादा किया I know होगा। there are some of us whom God has promised and said that you won't die till you won't see revival. और यहाँ पे लोग हैं जिनको परमेश्वर का वादा आया है कि आपको जब तक जागृति यहाँ पे नहीं दिखाई देती तब तक आप जीवित रहोगे। And you're looking at God's promise and you're looking at the circumstance you're in and you're saying, how can this be possible? But let me tell you, let me assure you, no word spoken by God will ever fail. अगर और आप इस परिस्थिति को देखते हो, परमेश्वर के वादे को देखते हैं और वो होता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वादा ना जरूर पूरा होगा। Do you have faith like Abraham, faith that chooses to look towards God rather than the circumstance? लेकिन आपके पास ऐसा विश्वास होना चाहिए अब्राहम जैसा कि जो परिस्थिति को देखते हुए भी परमेश्वर को देखता है और चुनता है। Many times we feel that having faith means we cannot ask questions. और आपको लगता है कि विश्वास हो लेकिन मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता। Okay, we try to put on a facade saying no, I'm cool, I'm chill, everything is fine, everything is और going well. ऐसा हम लोग मुखौटा डालते हैं कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है। हाँ, Okay, but Abraham didn't do that. He didn't hide his emotions. लेकिन ऐसा नहीं, अब्राहम ने नहीं किया, अपने भावनाओं को उसने छुपाया नहीं। He asked God, how are you going to do this? I can't see how this is going to happen. उसने परमेश्वर से पूछा कैसे करना चाहते हो, मैं तो दिख नहीं सकता ये। Wrestling with God is not unbelief. और इस तरह से परमेश्वर से बात करना जो है वो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका विश्वास है। We can fully trust God and still struggle. और परमेश्वर के साथ हम संघर्ष जरूर करें लेकिन हमारे पास विश्वास होते It's हुए like भी। the man in Mark 9, he says, Lord, I believe, but help my unbelief. इस तरह से जैसे मरकुस 9 में जो व्यक्ति है वो कहता है प्रभु मुझे मेरा जो अविश्वास है उसको आप मदद कीजिए। Okay, I have been in such situations. हाँ, हम भी इस तरह के परिस्थिति से गुजरे हैं। I know God is there. I know He will come true. I know the promises He has, but I still worry. और मैं जानता हूं परमेश्वर है, मैं जानता हूं कि उसके वादे हैं, फिर भी मुझे चिंता होती है I कभी try to कभी। do things in my own strength. और मेरे ही सामर्थ्य से मैं कुछ करना चाहता हूं। Sometimes I just give up. कभी कभी मैं हार मान देता हूं। But God is a good God. लेकिन परमेश्वर अच्छा परमेश्वर He's a है God of grace. और वो अनुग्रह का परमेश्वर He है। helps us with our unbelief. वो हमारे अविश्वास में हमारी मदद He करता है unties the knots of doubt. और हमारे जो संदेह है उसको वो मिटा देता है। He rewards our faith even if it is as small as a mustard seed. हमारा छोटे से छोटा जो विश्वास है उसको भी वो उत्तर देता है। And hear this very carefully, brothers and sisters, very carefully. और ये ध्यान से सुनिए भाइयों बहनों, बहुत ध्यान से सुनिए। It is not the size of our faith that saves us. अपने विश्वास का जो स्तर है उससे हमको उद्धार नहीं मिलता है, But it is the object of our faith, the who we believe in, that saves us. लेकिन जिस पे हम विश्वास करते हैं उससे द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, उससे ही हम बचते हैं। We are not saved because our faith is great. अब मेरा विश्वास बहुत बड़ा है इसलिए मेरा उद्धार नहीं हुआ है। We are saved because He is great. मेरा उद्धार हुआ है क्योंकि वो महान है। Our promises come true not because of us, because He will make them come true. हमारे जो वादे हैं वो हमारे महान विश्वास के कारण नहीं, लेकिन वो जो है वो सच्चा परमेश्वर है इसके कारण। 2 Corinthians 1:20 says that all promises in God are yes and amen. 2 कुरिन्थ 1:20 में लिखा है कि सारे जो वादे हैं परमेश्वर के वो हाँ और आमेन है। Faith isn't the absence of questions, it is courage to ask it to the one who can give us all the answers. और विश्वास होना इसका मतलब नहीं आप प्रश्न ना पूछे, लेकिन ये एक साहस कि आप उत्तर के लिए परमेश्वर के पास आते हो। It's about telling Jesus, God, help me, help my unbelief. तो ये है विश्वास, ये है कि हम यीशु से कहें कि प्रभु मेरे अविश्वास को मदद कीजिए। The third level of faith. और तीसरा स्तर जो विश्वास का, From the first time God told Abraham, I'm going to give you a child of your own, till Abraham actually had that child, you know how many years it was? अब जब पहली बार जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें बच्चा होगा अब्राहम को,
उसके बाद में जब उसका जो बच्चा हुआ उसमें कितना कितना साल का अंतर था मालूम है? You know how many years? कितने साल का अंतर था? 25 years. 25 साल का अंतर था। 25 years. 25 साल। It means if God speaks to me today about something, I'm 37, it will come true only when I'm 62. जब अगर परमेश्वर इनसे आज बात करे जिनकी उम्र 37 है, तो ये जब वो 62 साल के होंगे वो पूरा हो जाएगा। इसने कम बोला, तूने ज्यादा बोला, किसी ने सही नहीं बोला। हाँ? 37 है, 37, 38 होगा, टाइम है। तुम लोग जलते हो मेरी जवानी से। जवान आदमी दिखा नहीं, आ गए बुड्ढे ऐसे ही। नहीं, I'm just kidding. Took them 25 years. 25 साल लगे हैं उसको। I don't know about you brothers and sisters, I like things to happen immediately. मैं भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता आप कैसे हो, लेकिन मुझे तो तुरंत चाहिए सब कुछ। A lot of you know me well, and one thing I'm not known for is my patience. बहुत आप में से बहुत सारे लोग इनके जानते हैं, तो एक बात तो आप जानते हैं कि ये संयम नहीं रखते हैं। Okay, Abraham waited. लेकिन अब्राहम रुके थे। He had questions, he had dark nights of the soul, but he waited. और वो जो है उनके उसमें प्रश्न थे, दर्द भी हुआ होगा, लेकिन वो रोके Brothers परमेश्वर and के लिए। sisters, for some of us it may be a time of waiting. और शायद ऐसा हो कि ये आपके रुके बाट जोड़ने का समय हो सकता है आज। Okay, maybe there are promises. शायद वादे हैं आपके पास, They've not come to pass. वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। We wait हम रुकेंगे because we take God at His word. क्योंकि हम परमेश्वर का जो शब्द है उसको पकड़े Now रखेंगे। here's the thing, there are some promises that God made to Abraham that Abraham didn't see come through in his lifetime. और ऐसा भी एक है कि परमेश्वर ने जो कुछ वादे परमेश्वर ने किए जो अब्राहम ने अपने जीवन में देखे भी नहीं। He was promised that his descendants will inherit the earth. And how many children did he have? One. और उसको एक वादा किया गया था कि आने वाली पीढ़ी जो है वो सारे जो पृथ्वी के ऊपर उसका राज होगा। लेकिन कितना बच्चे थे उसके पास? एक ही बच्चा। And he had 2 grandchildren. और 2 उसके नाते थे। Inherit the earth and there were 3 of them. और लेकिन इसका मतलब यानी सारी जो पृथ्वी है उसकी विरासत, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 लोग। The land that God promised him and his descendants, it didn't become Abraham's in his lifetime. परमेश्वर ने वादा किया था कि ये जो भूमि है वो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की होगी, लेकिन वो जो वादा है वो अब्राहम के जीवन में पूरा होते हुए उसने देखा नहीं। It eventually became his descendants. और उसके आने वाली पीढ़ी ने जरूर पूरा किया। Okay, it became their land. वो उनकी भूमि जरूर हो गई। You know what is the most beautiful thing? इसमें सुंदर बात ये है, It still stands to this day. और आज भी वो जगह जो है वो उनकी पीढ़ियों की है। After all these years, इतने सालों बाद Israel is still a nation and they still have their land. और जो यहूदी लोग उसकी जो राष्ट्र जो है वो आज भी उसी भूमि पे है और उनकी जगह है वो। But that is just physical. और लेकिन ये सिर्फ अपने व्यावहारिक जीवन में That है, may be a few million people. और शायद कुछ मिलियन लोग हैं बस। But God told Abraham, your descendants will be like the stars in the sky and the sand of the earth. उसने कहा कि आपकी जो प्रजाति, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो एक तारों की तरह उतने अनगिनत होंगे, ताकि समुद्र की जो रेत है उसके जैसा अनगिनत होंगे। Brothers and sisters, he was not talking about Israel. वो इजराइल, वो राष्ट्र के बारे में बात नहीं कर रहे थे, It was beyond the nation of Israel. वो उस राष्ट्र के परे भी था वो। He was talking about the day when every tribe, every nation, every tongue would come to know him through faith in Jesus Christ. और वो बात कर रहे हैं परमेश्वर उससे इसके बारे में कि एक समय ऐसा आएगा कि सारे प्रजाति, सारे राष्ट्र, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग सारे यीशु के द्वारा उसके राज्य में आएंगे। Who is the ultimate descendant of Abraham? और वही जो लोग हैं वही है अब्राहम की पीढ़ी। Brothers and sisters, the descendants that were spoken about are you and me. और जो पीढ़ियों के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी वो है आप और मैं। We are the children of faith.
और हम एक विश्वास की संतान We है are the children of promise. और वादे की संतान हम हैं। Galatians 3 verse 7 to 9 says, understand then that those, sorry, please read it in Hindi. गलाती 3:7-9 से ऐसा लिखा है कि अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। आगे और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें जब जातियां आशीष पाएंगी। नेक्स्ट, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। The promises that God gave to Abraham, the promises of a relationship with God, a great name and a blessing to all nations, those promises are yours and mine too, because we are his descendants in faith. और इस तरह से जो अब्राहम को जो वादे किए परमेश्वर ने कि हम उसके जो आने वाली जातियां पीढ़ियां होंगी और हमारे द्वारा सारे राष्ट्रों में आशीर्वाद फैलेगा, तो वो है हम अब्राहम की वो विश्वास की संतान। When God promises, it doesn't happen the way we want it to happen. देखिए, जब परमेश्वर वादे करते हैं तो वो कैसे पूरे होंगे जो हमारी इच्छा से हमारे विचार से नहीं होता है वो। Men and women of God had to wait. All through history you see that God made them wait. और इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को रुकना पड़ा है वो वादा पूरा होने के लिए, Because he's working on his timeline, not on ours. क्योंकि वो परमेश्वर का जो समय है वो हमारे समय से अलग है। God promised Adam and Eve that they would get a child that will crush the head of Satan. और परमेश्वर ने आदम और हवा को ऐसा वादा किया था कि उन्हें उनकी जो आने वाली जो संतान है वो शैतान का जो सर है उसको कुचल देंगे। They believed and they waited. उन्होंने विश्वास किया और वो रुके। They called on the name of the Lord. वो परमेश्वर को नाम को पुकारा उन्होंने। But that promise came to pass 4,000 years later. लेकिन वो वादा 4000 साल बाद पूरा हुआ है। Israel was promised a Messiah, a Savior. और इजराइल राष्ट्र को मसीहा उसका वादा दिया गया था। Okay, who would give them victory? वो मसीहा जो है वो उन्हें विजय प्राप्त कर And देगा they वैसा thought it वाला, will be a king like David. और एक दावीद की जैसा वो राजा होगा। He did give them a king, और लेकिन जरूर उसको एक राजा दिया गया था, but he was far greater than David. लेकिन वो जो राजा उनको दिया गया वो दावीद से ही बहुत See, महान था। David's kingdom was physical. और दावीद का जो राज्य था वो सांसारिक It था, was earthly. वो इधर का पृथ्वी का जो था। After a few generations, David's descendants, they lost the kingdom. और कुछ पीढ़ियों के बाद वो जो राज्य था वो खलास हो गया। But this Savior's kingdom, this Messiah's kingdom, this is from everlasting to everlasting. It is an eternal kingdom and no one can take that away from him. ये मसीह का जो राज्य है वो जो है वो सदा चलने वाला है, अनंत काल तक चलने वाला है और उसका कभी नाश नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। God is working on those promises and he will make them come to pass. Maybe it is just not the way you and I want to see it. और परमेश्वर उसके वादों पे कार्य कर रहे हैं और जरूर होने वाले हैं, लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसे शायद नहीं होगा। Okay, and his promises will stand. लेकिन उसके वादे जो है वो पूरा होंगे ही होंगे। If God can make a barren woman and 100-year-old man have a child, he can do anything. और अगर परमेश्वर एक बांझ स्त्री और एक 100 साल के बुढ़े को ऐसा बच्चा दे सकते हैं तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। Okay, I've got two more points, but I'm running out of time. नहीं बोल दो please. अच्छा, और 2 मुद्दे हैं लेकिन समय खत्म हो रहा है So I'm अभी। going to end it here. देखिए मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। I just want to say that our life of faith is ongoing. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना जो विश्वास का जीवन है वो चलना ही चाहिए It doesn't stop or end. और वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। It grows, it matures. हमारा विश्वास आगे बढ़ना चाहिए, परिपक्व होना And चाहिए। as it does, it gives more and more glory to God. और जैसे ये विश्वास बढ़ता है परमेश्वर को उतनी ही महिमा मिलती है। Romans 11 and Hebrews 10 tells us that the righteous shall live by faith. और रोमियो 10 और इब्रानियों 11 में ऐसा है कि जो विश्वासी है वो
जो धर्मी है वो विश्वास से ही जीते हैं। Everything that we do, we need to do it in faith. और जो भी हम करते हैं विश्वास से करना चाहिए। Paul says in 2 Timothy 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. और पौलुस कहते हैं 2 तिमोथी 4:7 में कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। Are you and I keeping the faith daily? क्या हम रोज अपने विश्वास को पक्के रखते हैं? What is God asking you to trust Him with? और परमेश्वर आपको क्या कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर भरोसा What is रखें? asking you? What is He asking you to surrender to Him? और उसको क्या समर्पित करना चाहिए आपको? Okay, if He is asking you to put a mustard seed size of faith in Him, there are mountains He is going to move to make those come through. Yeah. तो अगर परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको जो राई जानने जैसा विश्वास उसको कार्य में लाना है, तो इसका अर्थ है वो पर्वत को हिलाना चाहते हैं। One thing I want to mention is God asked Abraham to give Isaac to him. और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मुझे तुम्हारा इसहाक है उसको दे दो, And Abraham was willing to do that. और अब्राहम ने खुशी से नहीं, अब्राहम ने इसहाक को दे दिया। Okay, the son that he waited for 25 years, एक जो पुत्र जिसके लिए उसने 25 साल उसकी बाट जोई थी, he just like this only gave it to God. ऐसे ही उसने इसहाक को परमेश्वर को दे दिया, Because God held far greater value to him than anything else that he had on this in क्योंकि this वो world. क्योंकि उसके आंखों में परमेश्वर की कीमत बहुत ही ज्यादा थी, और उससे ज्यादा जो उसके पास है उससे ज्यादा। Maybe God is asking some of us to put something on the line, something that we really love, something that we cannot live without. Maybe God's asking us to lay it down. शायद परमेश्वर हमसे ये मांग रहे हैं, ये बात आप दे कि जिससे हम बेहद प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत ही मूल्यवान समझते हैं, And if- वो उसको दे दें। And if God has been asking you to do that, अगर परमेश्वर आपसे वो मांग रहे हैं, okay, He will never. He doesn't ask us to do that because He finds joy in our pain. और ये वो मांग रहे हैं इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छा लगता है कि आपको कुछ दर्द हो, He does नहीं। that because He has something far greater in store. और ये वो मांग रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए उससे भी अच्छा कुछ है। If He takes something, अगर आप उसे कुछ देते हैं, He'll give something else, वो आपको और दूसरा कुछ जरूर and देंगे, it will be far greater and far better. और वो आपके पास जो है उससे भी बेहतर और सुंदर And होगा। even if He doesn't, और शायद वो ना भी दे, what He will give us is more of Himself. वो आपको क्या देंगे? अपने आप को देंगे। And what else do we need, brothers and sisters, than Jesus and Jesus alone? और हमें वो और क्या चाहिए पर यीशु और सिर्फ यीशु के। That is the level of relationship and faith Abraham had in Jesus, had in God, where all he wanted was just God. और वो स्तर का विश्वास अब्राहम में था कि वो ये कि उसे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा थी और कुछ नहीं। That is what God is calling us to do. और वही परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। 1 John 5:4. एक यूहन्ना 5:4 में लिखा है, For everyone who has been born of God overcomes the world. जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। And this is the victory that has overcome the world, our faith. वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है और वो है हमारा विश्वास। Amen. आमेन। Our faith. हमारा विश्वास, We will overcome with our faith. और उसी के द्वारा हम विजय प्राप्त करेंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद देते हैं। Lord, thank you that we've got such great examples, such great role models that we can look to and follow and take so much courage from. और हमारे धन्यवाद देते हैं कि हमारे सामने इतने बड़े बड़े आदर्श है जिसको हम अनुकरण कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम प्रोत्साहन पा सकते हैं। प्रभु Lord Jesus, I pray that amongst us, that I and my brothers and sisters will become this example for generations to follow. और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम हमारे साथ में सारे भाई बहन आने वाले पीढ़ियों के लिए ऐसे तरह का विश्वास का एक उदाहरण बने। Lord, I pray that, Lord, increase our faith. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए Help us believe. और मदद कीजिए हमें विश्वास करने के Help लिए। us not to worry. हमें मदद कीजिए ताकि हम चिंता ना करें। Lord, help us see beyond the circumstances that we are faced with. अब हमें मदद कीजिए कि हम परिस्थिति से परे देखें। Lord, help us look at you and know that there is nothing that is bigger
than what we have in you. और हम इस तरह से हमें दृष्टि दे कि हम आपको देखिए और कहे कि आपके जैसा बड़ा और कुछ है नहीं हमारे जीवन Lord, में। give us more of you. हमें प्रभु हम आपको और ज्यादा Lord, make जानना us चाहते more, हैं। make us more like you. हमें आपकी तरह बनाइए परमेश्वर। Lord, and I pray the promises that you've spoken over our lives, Lord, we believe and we know that you will have them come to pass. और हम मानते हैं परमेश्वर की जो वादे आपने हमारे ऊपर डाले हैं प्रभु आप उसे जरूर पूरा करेंगे। Lord, we trust in you. हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं परमेश्वर, We believe in you. आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। Lord, and we want to say we have complete faith that you are in control and you are working all things for our good. और हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर कि आपके ऊपर आप सारे चीज़ों के ऊपर आपका नियंत्रण है और आप अच्छी तरह से कार्य कर रहे Lord, I हैं। pray bless my brothers and sisters as they go out during this week. और प्रभु हमारे भाई बहनों पर आपका आशीर्वाद रहे इस सारे हफ्ते में। Lord, protect us from the rains. और ये जो वर्षा हो रही है उससे प्रभु आप हमें सुरक्षित रखें। Lord, give us people that we can share testimonies with, that we can share your gospel with. और ऐसे लोगों के पास हमें लेके जाइए परमेश्वर जिसके साथ में हम आपकी जो गवाहियाँ हैं वो बांट सकें। Lord, help us be discipled and disciple those whom you've put in our life. हमें प्रभु हमें अच्छे शिष्य बनाओ और जो हमारे जीवन में है उनको शिष्य बनाने के लिए हमें मदद कीजिए। Lord, protect us. हमें सुरक्षित रखे प्रभु Lord, and may your will be done through our lives. और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। May your will be done through our lives. आपकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो May your प्रभु will be done through this church. और आपकी ही इच्छा इस कलीसिया के द्वारे पूरी हो प्रभु। And may you be glorified. और सारी महिमा सारा आदर आपको May मिले you प्रभु always be glorified. और आपकी ही महिमा हो प्रभु। May spend Jesus' most precious and holy name. Amen. और प्रभु यीशु के नाम में आमीन।